Hello everyone. As per the promise made yesterday with not anybody, with my own self only, because the promises which you made with other people, there are, very slim chances of those promises to be fulfilled. But the promise which you made with your own self is surely going to be fulfilled in coming days or in nearest future, right? So as I mentioned yesterday that uh, today we are going to deal with Dryden, and I will try to cover up all major works written by Dryden, and at the same time those works which are very much frequent asked in NTA UGC NET and other peripheral examinations associated with English literature. All right. The first work which we today are going to deal with Astrea Redux. All right. Astrea Redux. Astrea Redux is a very important work written by John Dryden. And guys, John Dryden पे जो भी बेसिक बातें हैं, जो भी प्रोलॉग इन पे बनता है, जो भी इंट्रोडक्टरी चीज़ें इन पे इम्पॉर्टेंट हैं, उन पे मैंने एक वीडियो बना दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. एस्टर डक्स की जो पब्लिकेशन डेट है दैट इज़ 1660. बट मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ड्राइडन के केस में पब्लिकेशन डेट को याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट you have to keep one important date in consideration, that is 1668, because this date is very much associated with the poet laureateship of John Dryden. As you know, Dryden was appointed as the first official poet laureate, and at the same time Dryden का जो सबसे important critical work था, that is Essay on Dramatic Poesy, that was written in 1668, and this year is asked in examination a number of times. All right. So Astrea Redux जो है basically it's a work written by Dryden and it comes under the honor Panegyric. P-A-N-G-R-Y-I-C. Panegyric is basically praise. All right. जिसको आप लिटरेरी सेंस में यूलॉजी भी कहते हैं. All right. It's a praise after the death. So in this work, I mean in Astrea Redux, John Dryden is praising, all right? He is praising or he is commemorating basically. He is commemorating the arrival of King Charles II. Very important. कि इस वर्क के अंदर किस किंग के रीन को वेलकम कर रहे हैं ड्राइडन. It was the reign of King Charles II. I mean, he is welcoming once again an era of peace and prosperity. All right? क्योंकि इससे पहले जो रीन था that was of Oliver Cromwell, and Oliver Cromwell was a dictator. और उसके रीन में लोग जो थे उसकी डिक्टेटरशिप से फेडअप हो गए थे. ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए ब्रीफ बताऊंगा कि इंग्लैंड के अंदर जब क्रॉमवेल का ड्यूरिंग प्यूरिटन इरा रीन आया तो लोग काफ़ी फेडअप हो चुके थे वहाँ पे. ऑल राइट. और उन्होंने एक शिफ्ट किया. शिफ्ट जब इंग्लैंड से लोगों ने अमेरिका की तरफ किया और वहाँ पे जाके दे वर कॉल्ड एज पिलग्रिम्स फादर्स. ऑल राइट. पिलग्रिम्स फादर्स. पिलग्रिम्स फादर्स इज़ अ टर्म meant for the migrants of the British nation to America who were fed up by the reign of Oliver Cromwell. और वहाँ पे जाके उन्होंने कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी और फिर वहाँ से अमेरिकन लिटरेचर जो है दैट कैम इनटू एमर्जेंस. ऑल राइट. ये हमारे काम की बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ओलिवर क्रॉमवेल के रीन के बाद किंग चार्ल्स का रीन आया एंड दैट रीन वाज रेफर्ड एज द reign of prosperity and peace. All right. Okay. Next important thing which is associated with this work is that it is believed that Dryden in this work has been converted. All right.
he was converted in number of aspects. All right, so it is called as the poem or the work of conversion of जॉन ड्राइडन। कन्वर्जन किस एंगल से था कि ड्राइडन ने भी ओलिवर क्रोमवेल की गवर्नमेंट को ज्वाइन करा था, और जब उस गवर्नमेंट को ज्वाइन करा देन ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे, ही वाज क्लोज कंटेम्प्रेरी ऑफ ड्राइडन, he made a critical statement on John Dryden and said that if he changed, very important statement, if he changed with nation, he changed with nation, कि अगर उसने अपने आप को एक डिक्टेटरशिप, एक ओलिवर क्रोमवेल की गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट किया, तो he should also change his nationality. दिस वॉज अ स्टेटमेंट मेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस पोम, आई मीन दिस वर्क एस्टर रिडक्स according to Nuttall encyclopedia, very very important, Nuttall encyclopedia के अकॉर्डिंग एस्टर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जुड़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू Nuttall encyclopedia, more particularly with Asterix and generally according to Nuttall encyclopedia, it was an era, I mean 1660 के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। इट वॉज एन era which peaks itself the return of justice on earth. ऑलराइट, मतलब क्या है कि इसमें पीस की बात करी है, इसमें प्रॉस्पेरिटी की बात करी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एस्टेरिडक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्क विच वी आर गोइंग टू डील इज एनास मिराबलेस। बहुत छोटी सी डिटेल उस वर्क के साथ एसोसिएटेड है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एनास मिराबलेस जो पोम है, जो वर्क है, this is likewise Anas Mirabilis. Basically this work deals with the most difficult years of Dryden's time period. ड्राइडन के टाइम पीरियड में जो बहुत मुश्किल समा गुजरा है उसकी बात ये करता है। ऑलराइट, बेसिकली इट कमेमोरेट्स ए कपल ऑफ ईयर्स 1665 to 1666। इन 2 ईयर्स को इसने कमेमोरेट करा है यहाँ पे, और मोर पर्टिकुलरली जिन इंसिडेंट्स को इस वर्क के अंदर हाईलाइट किया है, फर्स्ट इज ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन and great fire of London और इंग्लैंड। ऑल राइट, ये 2 इंसिडेंट्स जो हैं जो इस वर्क के अंदर हाईलाइट किए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट एनएस मिराबलस से एसोसिएटेड है, दैट इज इट वाज रिटन इन 1216 लाइन्स। देखें गाइज, इस डेटा को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ग्रेट प्लेग की बात करी, ग्रेट फायर की बात करी, 1665 to 1666 की बात करी है। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, एनास मिराबलस में आपको यही इतना ही डील करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज एब्सलॉम एंड एक्टोफिल। इट्स मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड वर्क एज फार एज NTA UGC नेट इज कंसर्न्ड। एब्सलॉम and Achitophel. Absalom and Achitophel alongside essay on dramatic poesy comes under the masterpieces written by John Dryden, and publication date is
1681, ये पब्लिकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑलराइट, इसको ध्यान में रखेंगे। एब्सलॉम एंड अगेटोफिल इज सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्टेरिकल पोम, ऑलराइट, इट्स अ स्टेरिकल पोम। एक फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या कि इसके अंदर किसी को सटायर किया है। नेक्स्ट इज इट्स एल्गोरिकल इन फॉर्म, इट्स एल्गोरिकल इन फॉर्म। एल्गोरिकल इन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि दिस वर्क कैरीज अ डुअल मीनिंग और अ डुअल पर्पस, ऑलराइट। नेक्स्ट फैक्ट इज दिस वर्क इज बेस्ड ऑन अ बिब्लिकल स्टोरी, दिस वर्क इज बेस्ड ऑन अ बिब्लिकल स्टोरी, आई मीन दिस वर्क इज बेस्ड ऑन बाइबल, ऑलराइट। और बाइबल के अंदर मोर पर्टिकुलरली इट डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एब्सलॉम एंड किंग डेविड, ऑलराइट। किंग डेविड और एब्सलॉम के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट हाईलाइट्स इट। एंड इस वर्क के अंदर दो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को मेंशन किया है। फर्स्ट इज पॉपिश प्लॉट, फर्स्ट इज पॉपिश प्लॉट एंड सेकंड इज मैनमोथ रिबेलियन, ऑलराइट। दीज आर द कपल ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स मेंशन्ड इन दिस वर्क। और ध्यान में रखना है कि कौन सी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को मेंशन किया है, आपको मैंने बता दिया। पॉपिश प्लॉट और मैनमोथ रेबेलियन की बात करी गई है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज in association with Absalom and Achitophel, it is said that it is a finest, basically it is a finest political satire, all right, it's a finest political satire, all right। ये एक political satire है guys। This question was in fact this statement was asked in the question, and second statement was asked in the examination from the sphere of subtitle. So the subtitle of Absalom and Achitophel is a poem, very very important। A poem is a subtitle of Absalom and Achitophel, guys। ये याद रखना है कि Absalom and Achitophel का जो subtitle है, that is a poem, all right। अच्छा जी, at the very beginning in this work, Dryden says that the true end of satire, Dryden says, ये बहुत important fact है guys, Dryden says the true end of satire, the true end of satire is amendment of vices, VICES, vices is the opposite of virtue, बुरी आदतें, vices by correction, ऑलराइट। इस स्टेटमेंट को रटना है गाइज, आपने इसको आपने पॉलिश करना है कि द ट्रू एंड ऑफ द सटायर इज अमेंडमेंट ऑफ द वॉइसेस बाय करेक्शन। दिस इज अ स्टेटमेंट मेड बाय ड्राइडन इन एब्सलॉम एंड अकिटोफेल, एंड मोर ओवर इन दिस वर्क Dryden imitates the satirical style of Horace, first, and Virgil, and third one is Juvenal, all right। इन तीन राइटर्स को मेंशन किया इस वर्क के अंदर। नेक्स्ट फैक्ट इस वर्क से एसोसिएटेड जो है, एज आई मैंशनड ऑलरेडी दैट दिस वर्क इज बेस्ड ऑन एल्गोरिकल स्टैंडर्ड्स। ये एक एलेगरी है, तो एल्गोरिकल सेंस में किस कैरेक्टर ने किसको रिप्रेजेंट किया है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कैरेक्टर इज एब्सलॉम, ही इज रिप्रेजेंटेड बाय Monmouth basically, he is represented by Monmouth। Second is David is represented by Charles, obviously Charles second। Third is Shaftesbury, third is Achitophel, and he is represented by Shaftesbury।
नेक्स्ट इज जिमरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था. जिमरी वॉज बेसिकली द सर्वेंट ऑफ एब्सलॉम. ऑल राइट, जिमरी वॉज रिप्रेजेंटेड बाई बकिंगम. All right, so this is an allegorical representation of the original characters by the different characters. All right. Next, very important fact associated with Absalom and Ahithophel is that I forgot to mention that it's divided into two parts. Obviously, first part was written by John Dryden, and part second was written by a poet laureate and a close friend of Dryden, Nahum Tate. All right. Nahum Tate has written the second part of Absalom and Ahithophel, very important. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और एब्सलॉम एंड अकिटोफिल ने दो कैरेक्टर्स को मेंशन किया है. फर्स्ट इज टॉमस शैडविल, जिसको कि मैकफ्लेकने में ड्राइडन ने सटायर किया. नेक्स्ट इज एल्काना, एंड फुल नेम इज एल्काना सेटल, ELAKANEH, एल्काना सेटल. Thomas Shadwell is OG and Elkanah Settle is DOEG. ये भी याद रखेंगे आप एल्गोरिकल फॉर्म में. थॉमस शेडविल OG रिप्रेजेंट करते हैं और एल्काना सेटल DOG रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट इज, इस वर्क के अंदर ना एक ट्री को मेंशन किया है. देखें गाइज, ऐसे सिंबल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. इस वर्क के अंदर एक ओ ट्री को, ओक बेसिकली, ओक ट्री इज मैंशनड. ऑल राइट. मुझे याद नहीं आ रहा, अभी लास्ट एग्जाम में भी किसी वर्क से ओक ट्री का पूछा था, वो पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है कि ओक ट्री को, आई गेस इट्स मैंशनड इन वर्जीनिया वुल्फ सम वर्क, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे याद रखना है कि ओक ट्री इज मैंशनड इन एब्सलॉम एंड अकिटोफेल. नेक्स्ट वर्क इज मैकफ्लेकने, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. मैकफ्लेकने, मैकफ्लेकनो. ऑल राइट. मैकफ्लेकनो इज बेसिकली अ ग्रीक गॉडेस. अगर इनका आप ओरिजिन देखें, इट हैज डिराइव्ड इट्स मीनिंग फ्रॉम ग्रीक गॉडेस. ऑल राइट. एंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मैकफ्लेकने, वेट गाइस, एक मिनट दे दें मुझे, बाद में बताता हूँ इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. ऑल राइट. आई थिंक इट्स मीनिंग इज पीस. Still, I will check it out and try to upload it in shorts. मैकफ्लेकने से जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स पूछी गई हैं कि मैकफ्लेकने के अंदर जॉन ड्राइडन ने कौन से पोएट को सटायर किया. ही वॉज टॉमस शैडविल. ऑल राइट. टॉमस शैडविल, ही वॉज बेसिकली अ प्रोटेस्टेंट पोएट. ऑल राइट. प्रोटेस्टेंट पोएट हु, टॉमस शैडविल. और कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं TS, तो कहीं TS एलियट ना समझ लें. टॉमस शैडविल वॉज criticized, satirized by Dryden in the work Macfleckne. All right, and it is mock heroic satire, very important. It's mock heroic satire, and this work is famous for the universal important opening lines, and opening lines are, all human beings are subject to decay. All human beings are subject to decay, and when fate summons, very important, and when fate summons, summons दिखता प्लूरल है शब्द, लेकिन ये सिंगुलर होता है, आपको याद होना चाहिए. When fate summons, monarch must obey. All right, these are opening lines and most important lines of Macfleckne. All right. Next and last work आज की क्लास का, that is very important work titled as The Hind and the Panther. All right, very important. The Hind and the Panther. All right. The Hind and the Panther is a work written by John Dryden, and this work
This work comes under the genre beast fable. It's a beast fable, all right. और beast fable का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्क जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हों, ऑल राइट. It's also written in heroic couplets. It's written in heroic couplet. Though Dryden ने सक्सेसफुल यूज हीरोइक कपलेट का नहीं किया है, लेकिन द क्रेडिट ऑफ द immature use of heroic couplet goes to John Milton, Geoffrey Chaucer and John Dryden, and first successful use of heroic couplet was made by Alexander Pope. तो ये बीस्ट फेबल है. यहाँ पे 2600 टोटल लाइन्स इस वर्क के अंदर हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इट्स लॉन्गेस्ट ऑफ ड्राइडन्स पोम्स. लॉन्गेस्ट ऑफ ड्राइडन्स पोम्स. ये ड्राइडन की सबसे लॉन्गेस्ट पोम में से एक आती है. मार्गरेट डूडी ने एक कमेंट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे. मार्गरेट डूडी क्या बोलते हैं इस वर्क के बारे में कि इट्स अ वर्क ऑफ इट्स ओन काइंड. इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सुई जेनरस, ऑल राइट. आप सोच रहे होंगे सर बार बार क्यों खुजला रहे हैं. बेसिकली इट्स वेरी स्कॉचिंग हीट हियर इन पंजाब और फैन ऑफ है अभी because I am recording the class, so pardon me, all right, and tolerate me. Margaret Doody क्या कहते हैं? It's a great undeniable sui generis, all right. Sui generis is basically a work of its own kind, all right. Sui generis, poem of restoration era. All right, let me check recording चल रही है या नहीं. हाँ, it's going on. Restoration era, all right. तो sui generis जो statement है that was made by Margaret Doody. इसके अलावा 2-4 और कमेंट्स हैं यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे गए हैं. उन कमेंट्स को लिखने से पहले इस वर्क से इन्फ्लुएंस्ड होके मैथ्यू प्रॉयर और चार्ल्स मोंटाइग या मोंटैग आप बोल सकते हैं, इन दोनों राइटर्स ने को-ऑथर्ड एक वर्क लिखा. किससे इन्फ्लुएंस होके? हाइंड एंड पेंथर से इन्फ्लुएंस्ड होके. और टाइटल वाज द सिटी माउस एंड अ कंट्री माउस. द सिटी माउस एंड अ कंट्री माउस is a work written by Matthew Prior and Charles Montaigne, co-authored. और ये वर्क जो है वो हाइंड एंड पेंथर से इन्फ्लुएंस्ड होके लिखा गया है, ऑल राइट. अब देखें, दिस वर्क इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द रिजल्ट ऑफ द चेंज ऑफ religion of Dryden, because he changed his religion from Protestantism to Catholicism. So question बन सकता है कि ऐसा कौन सा वर्क है that deals with conversion of Dryden from Protestantism to Catholicism. It's Hind and the Panther, all right. Next guys, 2-3 critical comments हैं, उसके बाद हम क्लास क्लोज करेंगे. पोप क्या बोलते हैं? What Alexander Pope has said about Hind and Panther. Pope says that Hind and Panther is the most correct example of, this work is correct example of restoration era as far as versification is concerned. And versification is art of writing poetry with special reference to meters, all, prosody and all. आप समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है. पोप के अलावा वॉल्टर स्कॉट एक रोमांटिक नॉवलिस्ट है. वॉल्टर स्कॉट क्या कहते हैं हाइंड एंड पेंथर के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. इट इज नो मोर एब्सर्ड देन
any beast fable. This is a statement made by Walter Scott. And next is second last statement. It's made by William Hazlitt. And as you know, William Hazlitt is an essayist and a poet of romantic era. Hazlitt क्या बोलते हैं हाइंड एंड पेंथर को लेके? More genius vehemence and strength of description मतलब इस वर्क के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है दैट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वेरी फाइन description than any other works of Dryden, So guys, अलेक्जेंडर पोप का स्टेटमेंट वर्सिफिकेशन को लेके है, वॉल्टर स्कॉट बीस्ट फेबल की बात कर रहे हैं, विलियम हेजलेट जो है he talks about the description of Dryden's Hind and Panther in context of vehemence, strength of description, so on and so forth. And last statement is made by George Saintsbury. जॉर्ज सेंट्सबरी का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे. जॉर्ज सेंट्सबरी सेज दैट, जॉर्ज सेंट्सबरी क्या कहते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ वर्क, इट्स अ काइंड ऑफ वर्क whose subject, more particularly क्या है बता रहा हूँ, whose subject is written, it is a greatest poem ever written in the, it's a kind of greatest work written in the teeth of its सब्जेक्ट. एक तो टीथ ऑफ सब्जेक्ट का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज रिटन इन डेंजर और इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड मोर पर्टिकुलरली रिटन इन द टीथ ऑफ इट्स सब्जेक्ट ऑल्सो सेज दैट देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन दिस वर्क. ऑल राइट, सो गाइज वी आर लेफ्ट विद वन मेजर वर्क ऑफ ड्राइडन दैट इज एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी. उसके अलावा सारे वर्क्स मैंने आपसे डील करे, और एक लिस्ट में ट्राई करूँगा कि उसको एक शॉर्ट वीडियो बना के मेजर वर्क्स के और सबटाइटल्स के आपके लिए डालूं. तब तक अपना ख्याल रखें, मेहनत करें. NTA UGC नेट की नई डेट्स आ चुकी हैं, गेट रेडी फॉर दैट एंड दिस इज़ द ओनली मंथ. आई मीन ऑन 26 ऑनवर्ड्स आई थिंक इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाएगा टिल 3rd of September. ऑल राइट, एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर HPSC assistant professor aspirants also. All right. Thank you, bye bye and take care, and don't forget to subscribe and like the channel. लाइक कर दिया करें गाइस, देख लिया करो यार, बहुत रेलेवेंट कंटेंट होता है और बहुत मेहनत लगती है. टेक केयर.